যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি, অষ্টম পরিচ্ছেদ। হরে কৃষ্ণ। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 198 থেকে আমরা কন্টিনিউ করব। আর আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 198 থেকে আমরা 220 অব্দি করব। চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা 8.198 to 220। 198 নম্বর শ্লোক। রায় কহে যেই কহ সেই কহি বাণী, তাই কহে জয়ী কহো যেই সেই বাণী। কি করি কি কহিয়ে ভালো মন্দ কিছুই না জানি। কি কহিয়ে ভালো মন্দ কিছু নাহি জানি। শ্রী রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, আপনি আমাকে দিয়ে যা বলাচ্ছেন তাই আমি বলছি। যা বলছি তা ভালো না মন্দ সেই ব্যাপারে কিছুই আমি জানি না। ত্রিভুবনে মধ্যে হইছে হয় কোন ধীর, ত্রিভুবনে মধ্যে হয়েছে এই কোন জীব, যে তোমার মায়া নাটে হইবে স্থির। যে তোমার মায়া নাটে হইবে স্থির। এই ত্রিভুবনে এমন কোন ধীর ব্যক্তি রয়েছে যিনি আপনার माया नाटे स्थिर थकते पारे। आपका माया के प्रभाव से स्थिर रह सकता है, ऐसा कोई धीर व्यक्ति है इस त्रिभुवन में? तो मेरे से भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। वही बोलना चाह रहे रामानंद राय। मोर मुखे बक्ता তুমি হও শ্রোতা। মোর মুখে বক্তা তুমি হও শ্রোতা। অত্যন্ত রহস্য শুনো সাধনের কথা। অত্যন্ত রহস্য শুনো সাধনের কথা। শ্লোকার্থ। প্রকৃতপক্ষে আমার মুখ দিয়ে আপনি বলাচ্ছেন এবং তা আপনি নিজেই আবার শুনছেন, কি এক গম্ভীর রহস্য। এখন তাহলে আপনি সেই সাধনের কথা শুনুন। তাৎপর্য: শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবের কাছে কৃষ্ণ কথা শুনতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বিশেষত অবৈষ্ণবের কাছে কৃষ্ণ কথা না শুনতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। অবৈষ্ণব মুখ্যাদ Don't read the shloka, sing the shloka. অবৈষ্ণব মুখোদগীর্ণম পূতম হরি কথামৃতম শ্রবণম নৈব কর্তব্যম सपोच्छिष्टम यथापय। No, 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 no. इतना कुछ बोलने के बाद if you sing like this, not happening. See the construction of the words. Accordingly sing. अवैष्णव मुखोदगीर्णं पूतं हरि कथामृतम। Yes, continue. Repeat. अवैष्णव मुखोदगीर्णं पूतं हरि कथामृतम। Excellent. श्रवणं नैव कर्तव्यं सपोच्छिष्टं यथापय। Very good. Excellent. Yes. পদ্ম পুরাণ থেকে উদ্ধতি দিয়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামী অবৈষ্ণবের কাছে কৃষ্ণ কথা না শুনতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তা তিনি যত বড় পণ্ডিতই হন না কেন। কোথায় গেল সর্পে? এক মিনিট, चला गया ऊपर। थोड़ा नीचे आएगा। 200 नंबर श्लोक। हाँ, ऊपर चला गया। नहीं, आप और आगे नीचे जाइए, नीचे। यस, और नीचे। हाँ, यस, और थोड़ा नीचे। यस। পদ্মপুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামী অবৈষ্ণবের কাছে কৃষ্ণ কথা না শুনতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তা তিনি যত বড়ই পণ্ডিত হন না কেন। সর্পের উচ্ছিষ্ট দুধ যেমন বিশ্ব, তেমনই অবৈষ্ণবের মুখ্য নিশ্চিত কৃষ্ণ কথা ও বিশ্ববৎ।
কিন্তু বৈষ্ণব যেহেতু slowly, পরমেশ্বর slowly, ভগবানের slowly, শরণাগত, slowly, slowly, slowly. কিন্তু তাই তার কথায় ভগবানের কৃপা স্বরূপ চিন্ময় শক্তি রয়েছে। ভগবদ গীতায় 10.10 ভগবান বলেছেন, তেষাম সতত যুক্তানাম ভজতাম প্রীতি পূর্বকম দদামি বুদ্ধি যোগম তম येन মাম উপয়ান্তি তে। যে সর্বদা প্রীতি সহকারে আমার ভজনা করে আমি তাকে বুদ্ধি যোগ দান করি, যার প্রভাবে সে আমার কাছে ফিরে আসতে পারে। শুদ্ধ বৈষ্ণব যখন কৃষ্ণ কথা বলেন তখন তার মুখ্য নিশ্চিত বাণীর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হন। কি করে সম্ভব? তা হলো তার হৃদয় থেকে শ্রীকৃষ্ণ তাকে দিয়ে বলান। শ্রীল রামানন্দ রায় এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা পাত্র হয়েছিলেন। তাই তিনি স্বীকার করেছিলেন যে তিনি যা বলছেন তা তার নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রসূত কথা নয়। পক্ষান্তরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই তাকে দিয়ে বলাচ্ছেন। ভগবদ গীতায় 15/15 বলা হয়েছে, সর্বস্য চাহম হৃদি সন্নিবিষ্ট মত স্মৃতি জ্ঞানম অপোহনম চ वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम। আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছি, আমি স্মৃতি দান করি, সমস্ত বেদের মধ্যে কেবল আমি জ্ঞাতব্য, আমি বেদাস্তরে বেদান্তের প্রণেতা এবং আমি বেদবেত্তা। সমস্ত জ্ঞান আসছে পরমেশ্বর ভগবান থেকে, যিনি পরমাত্মা স্বরূপে সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। অতএব ভগবানের কাছে ইন্দ্রিয় সুখ চায়, অভক্তেরা ভগবানের কাছে ইন্দ্রিয় সুখ চাই, তাই অভক্তেরা ভগবানের মোহময় মায়া শক্তির বশীভূত হয়। ভক্ত সর্বদাই ভগবানের অনুগত থাকেন এবং তাই তিনি যোগ মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হন। তাই ভক্ত এবং অভক্তের মনোভাবে আকাশ পাতাল তফাৎ। হরে কৃষ্ণ। তো আপনাদের কারোর এরকম অনুভূতি হয়েছে যে আপনাদের হয়তো কিছু কৃষ্ণ কথা বলতে দেওয়ার সুযোগ হয়েছে, আর প্রভু আমি তো একদম रेडी नहीं था, मैं तो कुछ प्रिपरेशन नहीं किया और आई डोंट नो कैसे हो गया, मैं बोला और बोलते गया और सबको अच्छा भी लग गया। या ऐसे कोई कभी कीर्तन का आपको मौका दिया, प्रभु আমি তো গাইতে পারি না, नहीं आप करिए हाँ, और फिर आपने किया और बहुत अच्छा हो गया। ऐसे हुआ किसी का? गूगल हाथ उठाइए अगर किसी का हुआ ऐसे। हाँ, पंकज मित्र वजेश प्रभु बता रहे हैं यस। और बाकी का नंद किशोर प्रभु, शशि जायसवाल, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम यस। संगनी श्याम प्रिया प्रभु जी पहले पंकज प्रभु का भजन सुन के ना हम लोग टोई में एकदम इरिटेट होते थे। आज के दिन में आप अभी बोले ना हरि बोल, इनके बहुत फिनिशिंग है प्रभु जी। तो ऐसे ऐसे कभी और किसी का एक्सपीरियंस? यस भले ही बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं तो एकदम नहीं, कुछ भी एकदम कुछ नहीं गा पाती थी। आप जब से बोल रहे थे कि आपको प्रैक्टिस कर करके इसमें ये डालिए, इसमें इस्कॉन में भजन कर करके, तो उस समय 2-4 भजन, 5 भजन, 6 भजन करके डाली तो मैं कर पाई थोड़ा बहुत। तो ये कैसे आता है? ये भगवान प्रेरणा देता है, इसलिए भगवान बताते हैं ना, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। जब प्रभु ने पढ़ा। और दूसरा क्या श्लोक दिया भगवान ने भगवत गीता में? तेषां सतत युक्तानां सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो स्मृति ज्ञानम, और दूसरा वाला है यस तेषां सतत युक्तानां भजति प्रीतिपूर्वक ददामि बुद्धि योगम तम। ददामि बुद्धि योगम तम, ही गिव्स द इंटेलिजेंस एट द राइट टाइम। जब दरकार है उसी समय भगवान बुद्धि दे देता है। यस सुनीति राधिका माता जी, या नंद किशोर प्रभु, ऐसे अनुभूति शेयर कर सकते हैं? सोचे अचानक आपको माइक दे दिया, प्लीज आप दामोदर अष्टकम कीर्तन कीजिए ऐसे। ओके 201 नंबर श्लोक। राधा कृष्णेर लीलाए অতি গূঢ়তর, राधा कृष्ण लीलाए अति गुणतर, দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর। दास्य वात्सल्यादि भावे न होए गोचर। রাধা কৃষ্ণের লীলা অত্যন্ত গূঢ়, দাস্য সখ্য অথবা বাৎসল্য রসে
তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তো কোন রসে হৃদয়ঙ্গম করা যায়? माधुर्य रस। মাধুর্য রসে। সবে এই সখীগণের ইহা অধিকার, সবে সখীগণের ইহাই অধিকার, সখী হইতে হয় এই লীলারও বিস্তার। সখী হইতে এই লীলারও বিস্তার। একমাত্র সখীগণের এই লীলায় অধিকার রয়েছে এবং এই সখীদের থেকেই এই লীলার বিস্তার হয়। क्योंकि उन लोग माधुर्य रस आस्वादन कर सकता है, तो उन लोग का इसे एकमात्र अधिकार है। किस चीज का अधिकार है? राधा कृष्ण लीलाएं प्रवेश करना, अंडरस्टैंड करना, ये एकमात्र सखी लोगों का ही अधिकार है। सखी बिना ए लीला पुष्ट नहीं होए, সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়। सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादय। সখী লীলা বিস্তারে সখী লীলা হয়। सखी आस्वादय, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं बंगाली। সখী আস্বাদায়। সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট হয় না। সখীরা এই লীলা বিস্তার করে তারা নিজেরাই তা आस्वादन করেন। तो विदाउट सखी ये लीला कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट हो जाता है। भगवान का कोई भी लीला, सूची रास लीला, यू नीड सखीज, और विदाउट देम इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव दिस पास टाइम्स। भगवान के ये पास टाइम्स नहीं हो सकता है। और जब सखी लोग खुद ये पास टाइम में इन्वॉल्व होता है, तब उन लोग खुद रेलिश करते हैं, रेलिश आस्वादन करता है ये लीला का आनंद। 204 नंबर श्लोक। सखी बिना এই লীলায় অন্যের নাহি গতি, সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি। সখী ভাবে যে তারে করে অনুগতি, সখী ভাবে যেই তারে করে অনুগতি। রাধা কৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়, রাধা কৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়। এই সাধ্য পাইতে আর নাহি কো উপায়, সেই সাধ্য পাইতে আর নাহি কো উপায়। সখী ছাড়া এই লীলায় অন্য কারোরও প্রবেশের অধিকার নেই। সখী ভাবে সখীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যিনি তাদের অনুগত হন, তিনি কেবল বৃন্দাবনের কুঞ্জে রাধা কৃষ্ণের সেবা লাভ করতে পারেন। এছাড়া प्रभु जी एक बार श्लोक नंबर 3 का अनुवाद वापस से समझा दीजिए प्लीज। कितना का? 3 नंबर जो पहले गया गोपिया के, एक तो ना সখী बिना এই লীলা পুষ্ট नहीं হয়। पुष्ट मीन्स कंप्लीट नहीं होता है, ओके, परिपूर्ण पुष्ट नहीं होता है सखी बिना। सखी के बिना भगवान का ये राधा कृष्ण का लीला इनकम्प्लीट रहता है। सखी এই লীলার বিস্তার করে सखी लोग इस लीला में प्रवेश करके तारा নিজেরাই তা आस्वादन करें। उन लोग खुद ही ये माधुर्य रस आस्वादन करता है लीला का। सखी बिना, या 204 नंबर में, सखी ছাড়া এই লীলায় অন্য কারোরও প্রবেশের অধিকার নেই। nobody can enter such pastimes, but still who can enter? जो सखी लोगों का अनुगत है, मंजरी या उन लोग का दासी जो है, whoever is following सखी भाव, they are allowed to enter such pastimes. দাসানুদাস, या दासानुदास, गोपी भर्त पद कमलोर दास दासानुदास। সখী ভাবে সখীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যিনি তাদের অনুগত হন, তিনি কেবল বৃন্দাবনের কুঞ্জে রাধা কৃষ্ণের সেবা লাভ করতে পারেন। এছাড়া তা লাভ করার আর কোনো উপায় নেই। तात्पर्य, अच्छा रामानंद राय मंजरी थे कि सखी थे, अष्ट सखी थे कि मंजरी थे रामानंद राय? एक तो अर्जुन का अवतार है और एक विशाखा देवी का अवतार है। अर्जुन और विशाखा या ललिता, विशाखा शायद। एक तो अर्जुन का अवतार है रामानंद राय और एक विशाखा। ভগবত ধামে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার উপায় হচ্ছে ভগবত ভক্তি। কিন্তু বিভিন্ন ভক্তের রস বিভিন্ন। কেউ দাস্য রসে ভগবানের সেবা করেন, কেউ সখ্য রসে, আবার কেউ বাৎসল্য রসে। কিন্তু এই সমস্ত ভাবের দ্বারা বৃন্দাবনের মাধুর্য রসে ভগবানের সেবা লাভ করা যায় না। সেই সেবা লাভ করতে হলে গোপী ভাব অবলম্বন করে সখীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয়। लेकिन इसमें बहुत बहुत खतरनाक चीज है। ये गोपी भाव
অবলম্বন করে সখীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয়, क्योंकि हमने शिल प्रभुपाद में भी बहुत जगह बोला है, हमने खुद देखा है ये सब गोपी भाव अवलंबन করতে গিয়ে প্রভুরা সেই ঘোমটা পরে, হ্যাঁ, গোপী সেজে, पानीहाटी में तो बहुत देखे हैं, एकदम पूरा गौरीय वैष्णव घोमटा सेजे শাড়ি পরে এসে गोपी भाव अवलंबन করার চেষ্টা করে। आप लोग कोई देखा है ये सब? प्रभु जी वहाँ वृंदावन में था तो वो जब पूर्णिमा के दिन all men were dressed into like gopis only. So this kind of things Srila Prabhupada has not given us. We cannot imitate them. ये तो imitation हो गया। पदांक अनुसरण करना मैंने उन लोग का जो instructions है वो follow करना है। That is what the Prabhupada has told us to do. प्रभु जी ये डायरेक्ट पार्षद भी थे कि कृष्ण प्रभु के, ये मंजरियां एंड ऑल गोपीज? Manjari means assistant to gopis. But gopis were पार्षद of Krishna. Parshad of Krishna. I think कहीं Parshad. Read it somewhere. Yes, yes. Parshad. Okay. Yes, give an example. जो yes yes बोल रहे प्रभु? Parshad means always with coming with Krishna. Give an example. पार्षद means actually entourage. इंग्लिश में लिखता है entourage. Means जैसे अद्वैत आचार्य भगवान के पार्षद है, शिवास ठाकुर भगवान के पार्षद है. Means they are coming as pastime players, but they also have a role, eternal role in the spiritual world. जैसे महाविष्णु के अवतार है अद्वैत आचार्य, तो इटर्नल रोल क्या है? महाविष्णु के अवतार. लेकिन चैतन्य लीला में भगवान के पार्षद रूप में आए अद्वैत आचार्य. दैट इज पार्षद, एंटोराज इंग्लिश में. ये सखी लोग जो है ये भी भगवान, एक्चुअली मैक्सिमम आचार्य जो है उस रूप में आए हैं. मैक्सिमम आचार्य लोग मंजरी या सखी थे. बट पार्षद is a different thing. Parshad means one who participates in the pastime of the Lord. उस हिसाब से हम लोग बोल भी सकते हैं, क्योंकि रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, they also were there in महाप्रभु's लीला. था ना, उन लोग भी तो था महाप्रभु की लीला में. उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं. अदरवाइज तो इन लोग सब मंजरी थे या कुछ कुछ तो डायरेक्ट सखी थे. जैसे हम लोग इधर देख रहे हैं रामानंद राय, विशाखा सखी का अवतार. विशाखा या ललिता, हमको ठीक से याद है. ललिता शायद जगदानंद पंडित, या ये विशाखा सखी विशाखा प्रभु जी याद आ गए मेरे को, विशाखा में देख. हाँ, विशाखा सखी का होता. और जो थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाते थे वो जगदानंद पंडित, ही इज ललिता सखी का होता. ओके. और जैसे रति मंजरी, अनंग मंजरी, इन लोग का भी कुछ आचार्य लोग है, हमको ठीक से मालूम नहीं. जैसे रूप गोस्वामी शायद, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शायद रति मंजरी ऐसे कोई इनका अवतार बोला जाता है, एक्सेट्रा. हमको ठीक से याद नहीं. ओके. ये लिस्ट है एक्चुअली, गूगल में मिलने से पूरा लिस्ट दिया हुआ है. हु इज हु इन चैतन्य लीला, पूरा लंबा लिस्ट है. मेरे पास था भी ये लिस्ट, आई डोंट नो, हम शेयर भी किया था शायद ग्रुप में. ओके. जैसे मुरारी गुप्ता, हनुमान जी का अवतार. जैसे पुंडरीक विद्यानदी, इनके अवतार है. ऋषिभानु महाराज का अवतार. तो ऐसे सब लिस्ट पूरा दिया हुआ है उसमें. मैं देखता हूँ यहाँ पर दिया गया है कि मंजूरी की, मतलब यहाँ पर सब गोपिया के मतलब भक्ति करेंगे तो ही कृष्ण भक्ति मिल सकती है ना. तो गोपिया मतलब है ना अष्ट सखी, सखियां और राधा रानी. गोपिया मतलब जो रास लीला में भगवान का पार्टिसिपेट किया, क्योंकि सब गोपियां तो भगवान के रास लीला में पार्टिसिपेट किया. और यस, सखी लोग भी गोपियां हैं. मतलब कृष्ण प्रेम पाने के लिए इसमें लिखा है ना, कृष्ण प्रेम पाने के लिए हमें उनके उनके फॉलो करते. मीन उन लोग का जो आचरण है
वो फॉलो करना चाहिए. We have to get the essence and follow. ऐसा नहीं कि हम लोग को भी दूध बेचना चाहिए, हम लोग का भी गाय चराना चाहिए, ऐसा नहीं है. गोपियां लोग गाय चराते तो हम लोग भी गाय चराएंगे, ऐसा नहीं है. फॉलो मीन्स गेट द एसेंस, सार समझना चाहिए. उन लोग के एक्टिविटीज का सार क्या है? भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करना. दैट इज द एसेंस. एंड अकॉर्डिंगली हम लोग अपने टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अनुसार हम लोग भी भगवान को आनंद प्रदान करने का प्रयास करेंगे. बहुत अच्छा, वो कैसे करेंगे? श्रील प्रभुपाद ने वो फॉर्मूला दे दिया है, ABCD. बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी, बहुत अच्छा. अरे ওকে, कहाँ थे हम लोग? সেই সেবা লাভ করতে হলে গোপীদের ভাব অবলম্বন করে সখীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে. देखिए भाव रहेगा गोपी का, लेकिन सेवा किनका से रहेगा? किनको कॉपी करेंगे? कॉपी माने किनको फॉलो करेंगे? सेवा सखीদের মানে গোপীদের অ্যাসিস্ট্যান্টদের. ওই ইসলিয়ে দাস দাস অনুদাস. উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন, প্রেম লীলা বিহারানং সম বিস্তারিকা সখী বিশ্রন্ভ রত্ন পেটি চ. শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা ও বিভাবাদির সম্যক রূপে বিস্তারকারিণীকে সখী বলে. ओके, हु इज सखी? ये डेफिनेशन दिया हुआ है 204 में. उज्ज्वल लीलामणि में बोला हुआ है 204. One who expands the conjugal love of Krishna and his enjoyment among the gopis is called a sakhi. तो सखी और गोपी अलग है एक्चुअली. तारा माधुर्य रसाश्रित अंतरंगा गोपी. Such a person is a confidential gopi in conjugal affair. तो सखी गोपी भी है. हरे कृष्ण. তারা শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বাস রূপ রত্ন মঞ্জুষা স্বরূপ. Such assistants are like jewels in the form of Krishna's confidentees. উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে সখীদের প্রকৃত কার্য বর্ণনা করা হয়েছে. ओके, सखीদের প্রকৃত কার্য, व्हाट आर देयर एक्टिविटीज? अभी हम लोग वो पढ़ेंगे. মিঠা প্রেমা গুণোৎকীর্তিস তয়োরাসক্তিকারিতা আভিশরো দ্বয়োরেব শক্য কৃষ্ণে সমর্পণম নর্মস্বসাননে পথ্যম হৃদয়োজ্ঞাতপাতবম ছিদ্র সংবৃতিরেতস্য पत्यधे परिवन वंचन शिक्षा संगमानं काले सेवनं व्यजनाधिभिः तयोर्द्वयोरुपालम्भ संदेशा प्रेषणं तथा नायिका प्राण संश्रका प्रयत्नाद्य सखी क्रिया. शशि जायसवाल माता जी. यस प्रभु जी. माता जी और चंदा माता जी को प्लीज नॉक कीजिए. ओके प्रभु जी. শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য লীলায় শ্রীকৃষ্ণ নায়ক এবং শ্রীমতী রাধারানী নায়িকা. সখীদের প্রথম কাজ হচ্ছে যে নায়ক নায়িকার পরস্পরের প্রেম গুণত কীর্তন করা. দিস ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটি. ওকে, নায়ক নায়িকার পরস্পরের প্রতি আসক্তি বিবর্ধন করা. ওকে, সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটি क्या है? The first business of the gopis is to chant the glories of both the hero and the heroine. Their second business is to gradually create a situation in which the hero may be attracted to the heroine
एंड वाइस वर्सा। तो ऐसे एक सिचुएशन, ऐसे एक परिवेश सृष्टि करना, ये भी उन लोग का एक्टिविटी है। तीसरा, उभयर अभिसार करान। The third business is to introduce both of them to approach each other. Okay, this is Krishna. Okay, he's all attractive. Okay, and Krishna, this is Srimati Radharani. तो ऐसे करके एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराना। 4 नंबर, कृष्ण सुखी समर्पण। Their fourth business is to surrender unto Krishna. 5 नंबर, परिहास। The fifth is to create a jovial atmosphere. थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा जोवियल एटमोस्फियर, थोड़ा हास्यकर एटमोस्फियर, ये सखी लोग का कार्य है। 6 नंबर, आश्वासन प्रदान। The sixth, to give them assurance to enjoy. 7 नंबर, नायक नायिका বেশ অলংকার দিয়ে সাজানো। Their pastime, the seventh, to dress and decorate both hero and heroine. 8 নম্বর, মনোগত ভাব প্রকাশ করণে নিপুণতা। The eighth, to show expertise in expressing their desire. 9 নম্বর, নায়িকার দোষ গোপন। 9th, to conceal the faults of the heroine. 10 নম্বর, পতি প্রবৃত্তির বঞ্চনা। The 10th, to cheat their respective husbands and relatives. हरे कृष्ण। ओके, ये भी उनका कार्य है। 11, शिक्षा, to educate. 12, এখন কাকে এডুকেট সেটা আপনারা একটু কল্পনা করুন। 12, যথোচিত কালে নায়ক নায়িকার সম্মিলন করান। 12th is to enable both the hero and heroine to meet at a proper time. 13, चामर आदि व्यंजन। चामर व्यंजन, चामर ऐसे करते हैं। कौन सा गाना में है चामर? चामर बेदिरे ऊपर साबुत हेरी मुख चंद्र राधा कृष्ण का। Okay. The 13th is to fan the hero and the heroine. Fan माने चामर। 14, उभयर प्रति तिरस्कार। The 14th, to sometimes reproach the hero and heroine. दोनों एक दूसरे का तिरस्कार करना। 15 नंबर, संवाद प्रेरण। The 15th, to set conversation in motion. संवाद प्रेरण, conversation, कुछ आलोचना शुरू कर देवा, so that जैसे आइस ब्रेकर होता है वैसे। 16 नंबर, नायिकार प्राण रक्षार जन्य যত্ন। 16th, to protect the heroine by various means. हरि बोल। কিছু প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় আছে যারা রাধা কৃষ্ণের লীলার মর্ম বুঝতে না পেরে তাদের মন গড়া কতগুলি পন্থার সৃষ্টি করে। এই ধরনের সহজিয়াদের বলা হয় সখী ভেকি। তো এই 13টি অপসম্প্রদায়ের মধ্যে একজন আছে সখী ভেকি। এবং গৌরাঙ্গাগরী। गौर नागरी। ओके, सो ये 2 प्रकार का है जिन लोग मन गरा कुछ करता रहता है। वो जैसे मैंने बताया था ना, वो आप लोग भी देखे हैं उधर। তারা মনে করে যে কুকুর এবং শিয়ালের ভক্ষ তাদের জড় শরীরটি শ্রীকৃষ্ণের উভয়েরই বস্তু। তারা মনে করে যে, আচ্ছা ইংলিশে কি আছে, উপভোগের। হ্যাঁ, they believe that the material body which is fit to be eaten by jackals and dogs is enjoyable for Krishna. তারা নিজেদের সখী বলে কল্পনা করে এবং তারা তাদের জড় শরীরটিকে हरे कृष्ण प्रभु जी, ये लाइन नहीं समझ में आया। भौतिक शरीर जो कुत्तों सियारों के खाने योग्य है, कृष्ण द्वारा भोग्य है। তারা মনে করে কুকুর এবং শৃগালের ভক্ষ তাদের জড় শরীরটি
শ্রীকৃষ্ণের উপভোগের বস্তু। माई बॉडी इज फॉर रिलिशिंग कृष्णा। भगवान हमारा शरीर को इंद्र तृप्ति करेंगे, उसीलिए उन लोग सज धज के आता है कि भगवान भोग करेंगे हमारा शरीर को। ओके, ये ऐसा, ये गौर नागरी लोग रहते हैं जो सहजिया लोग। यस, मैं तो क्या बोले अभी। और भी बहुत कुछ इन लोग करता है। इन लोग दरवाजा बंद करके भगवान के साथ अंदर रहता है, विग्रह के साथ। बहुत हमने ये सब मैंने बहुत डिटेल में सुना है। हाँ, तो प्रभु जी, शिवजी माता जी फोन नहीं उठा रही, चंदा माता जी ज्वाइन कर दे। या ओके, सो ये सब अपसंप्रदाय लोग डेवलप हो रहे थे। वो पति पत्नी की तरह भीतर में व्यवहार करता है तो। हाँ हाँ, एकदम एकदम। তারা নিজেদের সখী বলে কল্পনা করে করে এবং তারা তাদের জড় শরীরটিকে কৃত্রিমভাবে সাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করতে চায়। अरे कृष्ण बहुत सुंदर, अच्छा से लिपस्टिक अच्छा से साजता है, क्यों? भगवान को आकर्षण करेंगे। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কখনো জড়দেহের সাজ সজ্জার প্রতি আকৃষ্ট হন না। হরে কৃষ্ণ। চিন্ময়ী শ্রীমতী রাধারানী ও তার সখীদের দেহ, গেহ, বেশভূষা প্রভৃতি যাবতীয় ক্রীড়া বা চেষ্টা সমস্তই চিন্ময়। সেই সবই শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়ের ইন্দ্রিয়ের প্রতি সাধনকারী। প্রকৃতপক্ষে তারা শ্রীকৃষ্ণের এতই প্রীতিকর যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারানী ও তার সখীদের বশীভূত হন। তা এই দেবীধামের অন্তর্গত 14 ভুবনের কোনো ব্যাপার বা বস্তু নয়। দেবীধাম মানে ये माया का जो जगत है, ये उसका वस्तु नहीं है। শ্রীকৃষ্ণ সর্বাকর্ষক হলেও তিনি শ্রীমতী রাধারানী এবং তার সখীদের দ্বারা আকৃষ্ট। Although Krishna is only attractive, but Krishna is attracted by Radharani and her associates. শ্রীকৃষ্ণ সর্ব আকর্ষক হলেও তিনি শ্রীমতী রাধারানী এবং তার সখীদের দ্বারা আকৃষ্ট। भक्ति रसामृत सौंदर्य का कौन सा श्लोक है? Although Krishna is all attractive, but he is attracted by Radharani and Sri Krishna Akarshani Shacha. कौन सा श्लोक है वो? किसी को याद है? वो 7 प्रकार का जो भक्ति है, भक्ति में जो 7 प्रकार का लाभ होता है। क्लेशाग्नि सुबधा मोक्ष लघुता कृत्सु दुर्लभ सांद्रानंदा विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणीश च। श्री कृष्ण जिनका नाम है, नाम का अर्थ ही है आकर्षण, लेकिन वो किससे आकर्षित हो जाता है? भगवत भक्ति से। ओके, তারা শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ। ভুবন মোহন শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করেন বলে তাদের নাম ভুবন মোহন মনোমোহিনী। এটার ইংলিশ কি? They have nothing to do with mundane in the 14 planetary system of this. Although Krishna is all attractive to everybody, he is nonetheless attracted by the gopis and Srimati Radharani. Okay, I don't know, this is an extra line. ভুবন মোহন শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করেন বলে তাদের নাম ভুবন মোহন মনোমোহিনী, गोपी लोग का नाम। ओके, भुवन मोहन मनोमोहिनी। जैसे मदन मोहन और श्रीमती राधारानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। वैसे ही কখনোই মনোধর্মের বশবর্তী হয়ে নিজের কাল্পনিক সিদ্ধ দেহে নিজেকে সখী বলে মনে করা উচিত নয়। এটি এক প্রকার অহংগ্রহোপাসনা, অর্থাৎ মায়াবাদীদের নিজেদের দেহটিকে ভগবান বলে মনে করে তার উপাসনা করার মতো। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রাকৃত জীবকে এই বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, ব্রজগোপিকাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে নিজেকে ভগবত পার্ষদ বলে মনে করা, নিজেকে ভগবান বলে মনে করা, উঠান প্রভু, मतोई गोरहित अपराध। तो अपने आप को गोपी समझना, वो अपने आप को भगवान या भगवान के पार्षद समझना के जैसे ही इतना बड़ा अपराध है।
তিনি বলেছেন ব্রজগোপিকাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে নিজেকে ভগবত পার্শ্বদ বলে মনে করা, নিজেকে ভগবান বলে মনে করার মতোই গর্হিত অপরাধ। বৃন্দাবনে বাস করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজগোপিকাদের লীলাবিলাসের কথা শ্রবণ করতে হবে, তাহলেই ধীরে ধীরে জড় কলুষ মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্বরূপ অধিষ্ঠিত হওয়ার যেতে পারে। কিন্তু কখনো নিজেকে গোপী বলে মনে করা উচিত নয়, কেননা তা একটি মস্ত বড় অপরাধ। किसी का कोई प्रश्न है? 206 नंबर श्लोक। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, लास्ट पैरा का जो स्टार्टिंग में है ना, किसी को मानसिक तर्क वितर्क से बहक जाना नहीं चाहिए, उसका भौतिक शरीर पूर्ण है, इसीलिए वह सखी बन सकता है। भौतिक शरीर पूर्ण वह सखी बन सकता है प्रभु जी, इसलिए ये लिखा हो। কখনোই মনোধর্মীর বশীভূত হয়ে নিজেকে কাল্পনিক সিদ্ধান্তে সিদ্ধ দেহে নিজেকে সখী বলে মনে করা উচিত না। ये वाला ना लास्ट पैराग्राफ का पहला सेंटेंस ना, हाँ पहला, किसी को मानसिक तर्क वितर्क से बहक जाना नहीं चाहिए। वन शुड नॉट बी मिसलेड बाय मेंटल कॉन्कॉक्शन। मन में हमको लग रहा है कि हम सखी, भगवान का सखी हो गया। प्रभु जी मुझे ऐसे स्वप्न आया कि मैं भगवान का सखी बन गया। सपोर्टिंग इज मटेरियल बॉडी टू बी परफेक्ट, कि हमारे ये शरीर एकदम पूर्णता प्राप्त हो गया, प्रभु जी मैं भी सखी बन गया, मैं आज स्वप्न आया। एंड डीमिंग वन सेल्फ टू बी अ सखी, और अपने आप को सखी समझना, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर ये सब सपने में आया और ये सब अगर मन में आया तो क्या करना चाहिए? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत अच्छा उपाय दिया है। बाहर जाइए, शू रैक से एक बहुत अच्छा मोटा सैंडल निकालिए और कितना बार सर पे मारने बोला था? 100 बार प्रभु जी। 100 बार 100 100 बार बार जूता मार मार दीजिए। हाँ, थोड़ा जोर से मारिए। ओके, 206 नंबर श्लोक। विभुरपि सुख रूपा स्वप्रकाशो अपि भाव। विभुरपि सुख रूपा स्वप्रकाशोऽपि भाव। क्षणमपि नहि राधा कृष्णयोर्यरिते स्वः। क्षणम् अपि नहि राधा कृष्णयो यारिते शव। प्रवहति रासरुपुष्टं चिद्विभूतिरिवेशः। प्रवहति रसपुष्टिं चिद्विभूतिरिवेशः। श्रयति न पदं मासं कसखीनां रसाज्ञः। श्रयति न पदमाशानं कः सखीनां रसज्ञः। রাধা কৃষ্ণ হচ্ছেন চিদ্বিলাস, স্বপ্রকাশ, আনন্দময় এবং বিভু, অর্থাৎ অনন্ত হলেও সখীগণ ব্যতীত ক্ষণিকের জন্য তা সর্বোচ্চ রসের পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। যেমন পরমেশ্বর ভগবানের চিদ্বিভূতি ব্যতীত ঈশ্বর তত্ত্ব পুষ্টি লাভ করে না, তেমনি তাই তৎপ্রবিষ্ট কোনো রসজ্ঞ সখীর পাদশ্রয় গ্রহণ না করলে রাধা কৃষ্ণ লীলায় প্রবেশ করা যায় না। এই শ্লোকটি গোবিন্দ লীলামৃত থেকে उद्धृत হয়েছে। मैं बहुत इजीली बता रहा हूँ आपको। आप लोग अगर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, उपदेश अमृतम का जो लास्ट में आई डोंट नो 7 या 8 नंबर श्लोक ऐसे कुछ है जिसमें लिखा है कि भक्त का सबसे भक्ति का श्रेष्ठ स्तर वही है जब वो वृंदावन में जाकर कोई एक भक्त के अंडर में गाइडेंस में भक्ति करे। सुना है आप लोग ये श्लोक? सुना होगा। यस प्रभु। हाँ, तो वैसे ही यहाँ बता रहा कि डायरेक्ट राधा कृष्ण का लीला में प्रवेश नहीं, गो वाया फॉलोइंग अ गोपी या मंजरी, वही लिखा है। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना रहा हूँ ट्रांसलेशन, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट ट्रांसलेशन था। अनुवाद 206 नंबर का। The pastime of Radha Krishna are self-effulgent. They are happiness personified, unlimited and all-powerful. Even so, the spiritual humor of such pastimes are never complete without the gopis, the Lord's personal friends. The Supreme Personality of Godhead is never complete with his spiritual potencies. Therefore, अभी मन से सुनिएगा, मन देकर. Therefore, unless one takes shelter of the gopis, one cannot enter in the company of Radha and Krishna. Who can be interested in their spiritual pastime without taking their shelter?
मैं जो श्लोक बोला उपदेश अमृतम का, अगर कोई फटाफट निकाल के उसका अनुवाद पढ़े तो बहुत बढ़िया रहेगा। 207 नंबर श्लोक। सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन, সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন, कृष्ण सह निज लीलाय नाही सखी मन। কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন। अगर आप लोग देखेंगे तो अभी रामानंद राय क्या बता रहे हैं, सखी लोग गोपी लोग का गुण कीर्तन कर रहे हैं, ठीक ना? इतना देर तो नहीं हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी 7 नंबर श्लोक का पढ़ेगा प्रभु जी उपदेशामृत का। मिल गया? हाँ प्रभु जी 7 नंबर श्लोक। हाँ पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। अच्छा, कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिस्री के समान आध्यात्मिक रूप नहीं से। ये तो तन नाम और रूप चरित्र आदि ये नहीं। 8 नंबर पढ़ेगा प्रभु जी। हमको मालूम नहीं कौन सा, देखिए ना अनुवाद देखकर पता चल जाएगा कि भक्ति का ये उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं रजती राधा कुंडे तट, ये कुछ लिखा हुआ है। रजती राधा कुंड देख रहे थे, कोई याद नहीं आ रहा है वो श्लोक, उसमें लिखा है कि वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी, यही प्रभु जी 9 नंबर। हाँ 9 नंबर ही शायद है। 9 नंबर पढ़े प्रभु जी। लास्ट में पढ़िए 9 नंबर का लास्ट 2 सेंटेंस पढ़िए अनुवाद का। अनुवाद का लास्ट। अतः तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा कर। पूरा पढ़ लीजिए अनुवाद, इसमें कोई एक अनुवाद में दिया हुआ है। तो इसलिए भक्त का यही चाहिए कि भक्त को कोई 11 नंबर होगा। 11 नंबर में है। हाँ पढ़ के सुनाइए अनुवाद 11 नंबर। अनेक आमोद की वस्तुओं, साउंड ठीक नहीं आ रहा है। जैसे श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। नहीं ये नहीं प्रभु, मेरे ख्याल से 9 नंबर श्लोक में जो लास्ट लाइन आती है ना, टिस्टेन ब्रजे अनुरागी अनुरागी, मतलब ब्रज के वो 9 नंबर का श्लोक में लास्ट लाइन आती है कि जो ब्रज में वास करते हैं उनका अनुगमन करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, शायद ऐसा ही था कुछ। किसी एक व्यक्ति का फॉलो करके अभी एक एक करके सभी पढ़ लिया आपने। 9 नंबर का लास्ट सेंटेंस पढ़िए। लास्ट सेंटेंस पढ़े प्रभु जी। क्योंकि यह गोकुल के स्वामी कृष्ण के अमृतमय प्रेम से अप्लावित रहता है, तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर। सॉरी 8 है प्रभु, 8 है, ये सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। 8 नंबर का लास्ट पढ़िए सेंटेंस। हाँ पढ़ रहे हैं प्रभु जी, लास्ट का सेंटेंस प्रभु जी। अच्छा, मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के परिचिनों का अनुगम करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं प्रभुपाद के कोई किसी को एक फॉलो करना चाहिए। एक वो बहुत रागानों का भक्ति का है, वो सब हम लोग एक्चुअली अभी सोचने का नहीं है। लेकिन जो एडवांस डिवोटी है, बहुत एडवांस डिवोटी है, वो ब्रज में जाकर वही लिखा है, ऐसे प्रभुपाद अच्छा बताते हैं, हमको भी बहुत क्लियर नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक सीनियर भक्तों का पदांक अनुसरण करना चाहिए। एनीवेज हमको लगा कि ये मैचिंग है, उसीलिए मैंने इसका 8 नंबर प्रभु जी आप बोले ही थे 8 नंबर के लिए। हाँ ऐसे कुछ। ओके, आज कितना श्लोक तक है, किसी को याद है कितना नंबर तक श्लोक है? 220। 220। हरे कृष्ण। ओके, 8 बज गया। শ্লোক অর্থ বলুন প্রভু। यस पढ़िए प्रभु जी। সখীদের স্বভাব এক অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তারা নিজেরা কখনো শ্রীকৃষ্ণের সব সঙ্গ সুখ উপভোগ করতে চান না। देखिए दे डोंट वांट कि हम भगवान के साथ न हो, दे वांट राधा कृष्ण
how they can be happily together, वही उन लोग का कामना है। 209 नंबर श्लोक अभी। राधार स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, राधार स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता। हरे कृष्ण प्रभु जी 208 छूट गया। कृष्ण सह राधिकार लीलाए जे कह राय, कृष्ण सह राधिका लीलाए कराए, निज सुख होइते ताते कोटि सुख पाए। हरि बोल। निज सुख হইতে তাতে কোটি সুখ পায়। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধিকার লীলা সম্পাদন করিয়ে তারা নিজ সুখ থেকে কোটি গুণ বেশি সুখ আস্বাদন করেন। হরি बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, पर इसमें लिखा है कि गोपियां कभी भी भगवान का संग नहीं करने, हमेशा राधा रानी संग करती थी, हेल्प करती थी और उसमें खुश रहती थी बहुत। लेकिन और उसमें कोटि गुण ज्यादा आस्वादन करते थे। हाँ प्रभु जी, लेकिन है ना, बोले ना कि रामलीला में भी जो अभी गोपियां बनी है और रामलीला में जो ऋषि मुनि थे वो भगवान का संग करना चाही थी, तो फिर उनका कभी तो इच्छा हुई थी ना संग करने के लिए, तो वो गोपियां बनी। अब गोपी बनने के बाद इच्छा हट गई। हाँ, लेकिन गोपी बनने के बाद उन लोग का यही इच्छा है कि कैसे राधा और भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करें। और उनको मालूम है भगवान को कैसे आनंद प्रदान कर सकते हैं। बोतल लाएगा तो जब श्रीमती राधा रानी तेज करना छोड़ दे बाबू, नीचे का सब्जी पूरा गल रहा मेरा। जब श्रीमती राधा रानी का संगत उनसे मिलेगा, तब सबसे भगवान खुश होगा। जड़ जगत में तो टोटली उल्टा है। हाँ, जब जगत में उल्टा है, लोग सामने खुद को लाना चाहता है। प्रभु जी जैसे मतलब भक्ति में आते हैं तो बुद्धि पूरी पलट जाती है। जैसे ध्रुव महाराज किस लक्ष्य से किए थे और उनका लक्ष्य बदल गया, वैसे ही जैसे उन लोग का लक्ष्य अलग था, लेकिन जैसे उन लोग सेवा में आए तो उन लोग का लक्ष्य बदल गया। यही हो गया क्या? ये क्या होगा, ये बहुत हाई फाई है। मैं तो सब मैंने दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। 209 नंबर হয়ে গেছে না? শ্রীমতী রাধা রানী শ্রীকৃষ্ণের প্রেম কল্পলতা স্বরূপ এবং সখীরা সেই লতার পল্লব पुष्प एवं पाता। ओके, अभी क्या कंपेयर किया जा रहा है? एक कल्पलता जैसा है, ठीक है, भगवान श्री राधा और कृष्ण का प्रेम, और उस कल्पलता में सखी लोग का क्या रोल है? पल्लव, पल्लव माने पाता, पुष्प फ्लावर एवं पाता। पल्लव माने एक्चुअली 2-3 पाता एक साथ होता है ना, उसको पल्लव बोलता है, যেমন আমের পল্লব আপনারা জানেন না তো। ओके, so they are part of that कल्पलता। कृष्ण लीलामृत यदि लता के सिंचय, कृष्ण लीलामृत यदि लता के सिंचय, निज सुख হইতে পল্লবাদের কোটি সুখ হয়, নিজ সুখ হইতে পল্লবাদের কোটি সুখ হয়। কৃষ্ণ লীলা রূপ অমৃত যখন সেই লতায় সিঞ্চন করা হয়, তখন পল্লবাদীর নিজ সুখ থেকে কোটি গুণ বেশি সুখ হয়। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অমৃত পাওয়া ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন, শ্রী রাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেম কল্পতা স্বরূপ এবং সখীগণ ওই লতার পল্লব পুষ্প এবং পাতা। লতারূপ রাধিকার পদাশ্রয় পূর্বক লতাকে জল সেঞ্চন করলে পল্লবাদীর অত্যন্ত প্রফুল্লতা হয়। পল্লবাদীতে জল সেঞ্চন করলে যেমন পল্লবাদী প্রফুল্লতা হয় না, তেমনি গোপীদের কৃষ্ণ মিলন সুখ থেকেও রাধা কৃষ্ণ মিলনের দ্বারাই অধিক সুখ হয়। তেমনি গোপীদের কৃষ্ণ মিলন সুখ থেকে, মানে हम भगवान कृष्ण के साथ मिलन करेंगे, दर्शन करेंगे, उससे ज्यादा उनको क्या हैप्पी लगता है? जब कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ मिलता है। তাই তেমনি গোপিকাদের কৃষ্ণ মিলন সুখ থেকেও রাধা কৃষ্ণ মিলনের দ্বারাই অধিক সুখ হয়। 211 नंबर श्लोक ये प्रूव करने के लिए अभी बताएंगे, ठीक है। कविराज गोस्वामी 211 नंबर श्लोक बता रहे हैं प्रूव करने के लिए। सख्य श्री राधिकाया व्रज कोमदा विधोरलादिनी नाम शक्ति, सख्य श्री राधिका ब्रज कुमुद विधो आलादिनी नाम सकते, श्रमश प्रेम वल्य किशलया दाल पुष्पादि तुल्य स्वतुल्य।
सारांश प्रेम बाल्य किसलया दाल पुष्पादि तुल्य सवातुल्य शिक्तयं कृष्ण लीलामृत रस निचये उल्लासन्त्यमम्युषम् सिक्तयं कृष्ण लीलामृत रस निश्चया मुसयं जतोल्लास स्वशेकचत गुणम् अधिकं शान्तियन्तं निचित्रम् जतो उल्लास श्वासकेत छत गुणामधिक शांति प्रतन चित्रम। तो कविराज गोस्वामी इसको प्रूव करने के लिए गोविंद लीलामृत से এই শ্লোকটি গোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। इसका अर्थ क्या है? ব্রজসখীরা শ্রী রাধার তুল্য এবং ব্রজ কুমুদ চন্দ্রের লাদিনী নাম্নী শক্তি স্বরূপা শ্রী রাধিকার সারাংশ প্রেমবল্লীর নবীন পুষ্প পত্র পুষ্পাদি স্বরূপ কৃষ্ণ লীলামৃত রসের সমূহের দ্বারা পরম উল্লাসময়ী রাধিকা সীতা হলো সখীদের নিজেদের সেচন থেকে শতগুণ অধিক হরষিতা হন। প্রকৃতপক্ষে তাতে আশ্চর্যম্বিত হওয়ায় কিছুই নেই। इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज थोड़ा लेट होगा, अगर कोई बिजी है तो लीव कर सकता है। All the gopis, the personal friends of Srimati Radharani, are equal to her. Krishna is pleasing to the inhabitants of Rajabhumi, just like the moon is pleasing to the lotus flower. His pleasure-giving potency is known as Ladini, of which the active principle is Srimati Radharani. She is compared to a creeper with newly grown flowers and leaves. When the nectar of Krishna's pastime is sprinkled on Srimati Radharani, all her friends, the gopis, immediately appreciate the pleasure of 100 times more than if they were sprinkled themselves. जब ये अमृत भगवान कृष्ण का लीला का अमृत जब श्रीमती राधा रानी के ऊपर छिड़कता है तो उन लोग को ज्यादा आनंद आता है अपने ऊपर छिड़कने से 100 times more than if they were sprinkled themselves. Actually, this is not at all wonderful. Actually, this is not at all wonderful. यानी ये आश्चर्यजनक नहीं है, ये स्वाभाविक है उन लोग का कि उन लोग को श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का आनंद देखने से ही उन लोग ज्यादा हैप्पी होता है। 212 नंबर श्लोक। यद्यपि सखीर कृष्ण संयमेन तथापि राधिका যত্নে করানো সঙ্গম যদিও সখীদের কৃষ্ণ সঙ্গমে কোনো বাসনা নেই, তবুও শ্রীমতী রাধারানী যত্ন করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখীদের সঙ্গম करान। हरे कृष्णा। देखिए सखी लोग का कोई अपना इंटेंशन नहीं है कि कृष्ण के साथ मिलन करेंगे, लेकिन श्रीमती राधारानी क्या कराती है, वो भी कृष्ण के साथ सखी लोगों का मिलन कराती है, म्यूचुअल। नाना छले कृष्ण प्रेरी संगम कराए। नाना चली कृष्ण संगम कृष्ण प्रेरी संगम कराए। कृष्ण प्रेरी संगम कराए। आत्म कृष्ण संग होइते कोटि सुख पाए। कृष्ण संग होइते कोटि सुख पाए। बहुत इजीली हम लोग समझ जा रहे हैं ना, इस श्लोक एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नाना छले सखीদের কৃষ্ণের কাছে পাঠিয়ে श्रीमती राधारानी कृष्णेर संगे ताদের संगम करान। नाना छले, अच्छा तुम थोड़ा ये पान देकर आओ तो कृष्ण को। इस तरह से भगवान के साथ उन लोग का संगम कराते हैं। তখন श्रीमती राधारानी कृष्ण संग सुख থেকেও কোটি গুণ বেশি সুখ আস্বাদন করেন। হরে বল। देखिए অন্যান্য বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট। विशुद्ध प्रेम करे रस पुष्ट। তা সবারও প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট।
তাসাবাদ প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয়ে তুষ্ট। পরস্পরের বিশুদ্ধ প্রেম রস পুষ্ট হয়, পরস্পরের বিশুদ্ধ প্রেমে রস পুষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখেন গোপিকারা কিভাবে তার প্রতি শুদ্ধ প্রেম পরায়ণ হয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত তুষ্ট হন। अभी भगवान बहुत संतुष्ट होता है जब देखते हैं कितना अच्छा से सेवा करके उन लोग को आनंद मिल रहा है, और भगवान जब तुष्ट होता है तो अगला श्लोक में हम देखेंगे तो फिर उन लोग भी हैप्पी हो जाते हैं, उन लोग भी तुष्ट हो जाते हैं। শ্রীমতী রাধারানী এবং তার সখীরা কৃষ্ণ সঙ্গ প্রভাবে তাদের নিজেদের সুখের জন্য লালায়িত নন, পক্ষান্তরে তারা পরস্পরকে কৃষ্ণ সঙ্গ করতে দেখে আনন্দিত হন। এইভাবে তাদের কৃষ্ণ প্রেম বর্ধিত হয় এবং তা দেখে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। সহজ গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। सहज गोपी प्रेम दाहे प्रकृत काम। काम क्रीड़ा साम्यतार कोही काम नाम। काम क्रीड़ा साम्य तार काहि काम नाम। গোপীদের কৃষ্ণকে ভালোবাসার স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে, ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি। এই প্রেম প্রাকৃত কাম নহে, কিন্তু জড় কাম ক্রীড়ার সঙ্গে তার সদৃশ্য রয়েছে বলে তাকে কখনো কখনো কাম বলে বর্ণনা করা হয়। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, কাম সম্বন্ধিত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা वृत्ति नॉय। इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखना पड़ेगा 215। Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says that material lust should never be attributed to Krishna, who is full of transcendental knowledge. Okay. কাম সম্বন্ধিত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা বৃত্তি নয়, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য বস্তুর সুখ তাৎপর্য বিশিষ্ট। প্রেম কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখ তাৎপর্য ও শ্রীকৃষ্ণের सेवामय। गोपीर कामेर नामी प्रेम, गोपी लोग का जो काम है वो प्रेम जैसा ही है, प्रेमी है। ओके, इट इज हम लोग के लिए ये इंटरचेंजेबल नहीं है काम और प्रेम, लेकिन गोपी लोग के लिए काम और प्रेम एक ही है। गोपीर कामेर नामी प्रेम, যেহেতু গোপিকারা তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয় সুখের আকাঙ্ক্ষিনী নন, কেবল কৃষ্ণ সুখের জন্য স্বজাতীয় সখীর দ্বারা সেবা করিয়ে এবং তাদৃশী সখীর দ্বারা কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত হয়ে কৃষ্ণ কাম স্বীকার করেন মাত্র। জড়কাম এবং ভগবত প্রেম এর মধ্যে এই পার্থক্য। एक है खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन और दूसरा है भगवान को इंद्र तृप्ति कराना। 216 नंबर श्लोक, इसको प्रूव कराने के लिए 216 नंबर श्लोक। प्रेमैव गोपरामानां प्रेमै गोपरामाणां काम इत्यगमत् प्रथम कामा इत्यागम अत्प्रथम इत्युद्धावदोदयपीयतम् इत्युधावादायो उप्यतम वाञ्छन्ति भगवत्प्रिया वाञ्छन्ति भगवत्प्रियाः। ব্রজগোপিকা, এই শ্লোকটি ভক্তি রসামৃত সিন্ধু থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ব্রজগোপিকাদের শুদ্ধ ভগবত প্রেম কাম বলে আখ্যা দেওয়ার প্রথা হয়েছে। শ্রী উদ্ধব আদি শুদ্ধ ভগবত ভক্তেরাও সেই প্রেমের পিপাসু। Although the dealings of the gopis with Krishna are on the same platform of pure love of Godhead, such dealings are sometimes considered to be lusty. But because they are completely spiritual, Uddhav and all other dearmost devotees of the Lord desire to participate in them. उन लोग उद्धव को भी इच्छा हुआ था कि गोपी बनने का, और भगवान का ये लीला में प्रवेश करने का। 217 नंबर श्लोक। निजेंद्रिय सुख हेतु कामेरो तात्पर्य निजेंद्रिय सुख हेतु कामेरो तात्पर्य कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव वर्ष। कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव वर्य। कौन सा श्लोक का बहुत सिमिलर है? आत्म इंद्रिय
প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলে কাম, কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম না। ওকে, নিজের ইন্দ্রিয়ের সুখ সম্পাদন কামের তাৎপর্য। কিন্তু গোপিকাদের মনোভাব সেরকম ছিল না। তাদের একমাত্র বাসনা ছিল শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করা। ওকে, নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপিকার, निजेंद्रिय सुख वांछा नहीं गोपिकार, কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার। कृष्ण सुखे दिते करे संगम विहार। সিমিলার শ্লোক। নিজেদের ইন্দ্র সুখ ভোগের কোন রকম বাসনা গোপিকাদের ছিল না। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দেওয়ার জন্যই তারা তার সঙ্গে সঙ্গম এবং বিহার করেছিলেন। अभी इसको प्रूव कराने के लिए 219 नंबर श्लोक। यत्ते सुजाता, नहीं जाएगा। यत्ते सुजाता चरणाम्बु रुहं स्तनेषु, यत्ते सुजाता चरणं बुरुहं स्तनेषु, पीतसने प्रिया दधि मही कारकाशेषु, भीतासने प्रिया दधिम् अहि कर्कशेषु, तेन तविम् अतसि तद्व्याथतेन किं स्वेत्, तेनाटविमटसि तद्व्यथतेन किं स्वेत्, पूर्पधिभिर्भ्रमति धीर्भवेतायुषं नः, कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, শ্রীমদ্ ভাগবতম से लिया गया এই শ্লোক। হে প্রিয়, তোমার সুকমল চরণ কমল আহত হবে এই আকাঙ্ক্ষায় আমরা আমাদের কঠিন স্তন অত্যন্ত সন্তপর্ণে ধারণ করি। তুমি আমাদের জীবন স্বরূপ, তাই বন ভ্রমণের সময় পাথরকুচির আঘাত তোমার সুকমল চরণ যুগল আহত হতে পারে। এই আশঙ্কায় আমাদের চিত্ত उत्कंठित হচ্ছে। आप ये खाली पैर आप गोचारण करने जाएंगे तो आपको बहुत चोट लग सकता है। 219 नंबर श्लोकेर इंग्लिश ट्रांसलेशन। All the gopis said, Dear Krishna, we carefully hold your delicate lotus feet upon our hard breasts. When you walk in the forest, your soft lotus feet are pricked by small bits of stones. छोटा छोटा जो होता है स्टोन, वो ज्यादा चोट लगाता है ना। जब परिक्रमा करते हैं जो छोटा छोटा स्टोन चिप होता है, बहुत दिक्कत होता है वो सब छोटा छोटा। पेनफुल। We fear that this is paining you. Since you are our life and soul, our minds are very much disturbed when your lotus feet are pained. आज के अंतिम श्लोक 220 नंबर। সেই গোপী ভাবমৃতে যার লোভ হয়, সেই ভাবামিতে যার লোভ হয়, বেদ ধর্ম লোক ত্যাজি সে কৃষ্ণ ভজায়। বেদ ধর্ম লোক ত্যাজি সে কৃষ্ণে ভজায়। শ্লোকার্থ। এই গোপী ভাব রূপ অমৃতে যার লোভ হয়, তিনি বেদ ধর্ম লোক ধর্ম আদি পরিত্যাগ করে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন এবং তাহার সেবা করেন। One who is attracted by the ecstatic love of the gopis does not care about the popular opinion or the regulative principles of the Vedic life. Rather, he completely surrenders unto Krishna and renders service unto him. এখানে লোহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, করিয়া সবে বল হরি হরি। हरि हरि।